Hello student, today we have to discuss the topic of Gupta dynasty. Before Gupta, Kusan dynasty ruled over India and Sakas of Murandas ruled over India. After that, Gupta dynasty ruled over India between 275 AD to 550 AD. The main rulers of Gupta dynasty were Srigupta. He was the founder of this dynasty. After Srigupta, Ghatotkacha became the ruler of Gupta dynasty and he gained the title of Maharaja. After Ghatotkacha, Chandragupta first became the ruler of Gupta dynasty. After Chandragupta, Samudragupta became the ruler of Gupta dynasty. He was the main ruler of this dynasty and he is also known as Napoleon of India. After Samudragupta, Chandragupta II became a ruler of India and he gained the title of Vikramaditya. After that, Kumargupta, Mahendragupta and Iskandargupta. The last Gupta ruler is Bhanugupta. Now the first ruler of Gupta is Srigupta. He was the founder of this dynasty and he founded this dynasty in 275 AD. Ghatotkacha, he gained the title of Maharaja. तो इन दोनों से भी ये दो बातें याद रखनी है. Srigupta was founder of this dynasty and founded this dynasty in 275 AD and Ghatotkacha gained the title of Maharaja. फिर है चंद्रगुप्त फर्स्ट. इससे रिलेटेड हमें 3 टॉपिक्स याद रखने हैं. सबसे पहले he gained the title of Maharaja Dhiraj और he started Gupta era in 319 AD. So you know about who started Gupta era? Chandragupta first started Gupta era in 319 AD. And he got married with Kumar Devi, but she was literally princess. Next, the main ruler is Samudragupta. He followed the policy of Digvijay. His main ideas was unifying India and conquering India. Harishen was court poet of Samudragupta and he wrote the Allahabad Prasasti. His empire divided into 5 parts. He also strong their naval power and made good foreign relations with their neighbor countries. He gained the title of Ashwamedh Parakram and Kavi Raj. He is also excellent in music and fine art and he is also a great poet. Now we discuss the first point of Samudragupta. He was the successor of Chandragupta first. He followed the policy of Digvijay and imperialism. Imperialism का मतलब होता है बेटा साम्राज्यवाद. फिर ideals. His ideals was unifying and conquering India. ये पूरे इंडिया को यूनिफाई करना चाहता था और पूरे इंडिया को जीतना चाहता था. Harishen was court poet of Samudragupta and he described the military victories of Samudragupta in Allahabad Prasasti and Prayag Prasasti. जो इलाहाबाद प्रशस्ति से प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं. प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना. तो Harishen described military victories of Samudragupta in Allahabad Prasasti and Prayag Prasasti. फिर नेपोलियन. He was called the Napoleon of India by Smith. भारत का नेपोलियन बोनापार्ट किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को, बिकॉज इसकी जो लाइफ का पूरा पार्ट है वो युद्ध में ही व्यतीत रहा है, इसलिए he is called the Napoleon of India. टाइटल, he gained the 2 titles. अश्वमेध पराक्रम. ये अश्वमेध यज्ञ करता है इसलिए कौन सा टाइटल लेता है? अश्वमेध पराक्रम. और ये बहुत अच्छा कवि होता है इसलिए he also gained the title of कविराज. He was also excellent in fine art and music. His image of playing harp या वीणा has been inscribed on a coin. एक हमें सिक्का मिला है जिस पर एक राजा वीणा बजाते हुए बताया गया है और वो किसका कॉइन है? समुद्रगुप्त का. Samudragupta also strengthened his foreign relation and naval power. अब इसका बड़ा जो एम्पायर है वो सबसे मैन है
द एम्पायर ऑफ समुद्रगुप्त डिवाइडेड इनटू 5 रीजन। फर्स्ट है द स्टेट ऑफ गंगा, यमुना एंड दोआब। सेकंड है द स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय। थर्ड है द बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ ईस्टर्न विंध्या रीजन। फिर आपके ईस्टर्न डेक्कन एंड स्टेट ऑफ साउथ। और लास्ट है सकाल एंड कुषाण स्टेट। एक बार वापस बनाऊंगा बेटा इसको। फर्स्ट द स्टेट्स ऑफ गंगा, यमुना एंड दोआब, द स्टेट ऑफ ईस्टर्न हिमालय, द बॉर्डरिंग स्टेट ऑफ ईस्टर्न विंध्या रीजन, ईस्टर्न डेक्कन एंड साउथ स्टेट ऑफ साउथ, एंड सक एंड कुषाण स्टेट। नेक्स्ट रूलर है बेटा चंद्रगुप्त सेकंड। He was the famous ruler of Ujjain. He was the successor of Samudragupta. He gained the title of 4 types of title take: देवराज, देवगुप्त, साकारी एंड विक्रमादित्य। जब ये सकों को हराता है तो विक्रमादित्य का टाइटल ये गेन करता है। और भारत में जो विक्रम संवत है उसको भी स्टार्ट करने वाले उज्जैन के सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड ही हैं। He expanded his empire through marriage alliances and victories. ये की जो पॉलिसी है बाद में अकबर फॉलो करता है। अकबर भी अपने एम्पायर को मैरिज अलायंसेस और विक्ट्रीज के द्वारा ही एक्सपेंडेड करता है। फिर उज्जैन ही मेड उज्जैन हिज सेकंड कैपिटल। उज्जैन को ही अपनी सेकंड कैपिटल बना दिया। वेस्टर्न मालवा ही आल्सो ऑक्यूपाइड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात। फिर फायर ही वाज चाइनीज ट्रैवलर who visited India during the period of Chandragupta II. Prabhavati, he was the daughter of Chandragupta II and he got married with the Vakta king Rudrasen. रुद्रसेन की छोटी आयु में डेथ हो जाती है और उसके बाद प्रभावती उसके एम्पायर को होल्ड करती है। फिर लास्ट है विक्रमादित्य। आफ्टर गेनिंग विक्ट्री ऑन सकाल ही गेन द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। मतलब सकों को हराने के बाद ये कौन सा टाइटल ले रहा है? विक्रमादित्य। नेक्स्ट रूलर कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय। इससे रिलेटेड में 2 या 3 बातें याद रखनी है। ही वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एम्पायर। ही एक्सपेंडेड गुप्ता एम्पायर फ्रॉम सौराष्ट्र टू बंगाल एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। इसमें एक ही टॉपिक याद रखना है कि जो कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय है ही वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी एंड ही फेस द रिवॉल्ट ऑफ पुष्यमित्र। ये किसके रिवॉल्ट को फेस करता है? पुष्यमित्र के। लास्ट मौर्य रूलर स्कंदगुप्त। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ही रिनोवेट सुदर्शन लेक। तो किस गुप्ता रूलर ने सुदर्शन लेक को रिनोवेट किया है? वो है स्कंदगुप्त। और एक बात और से रिलेटेड है, ये हूण एक ट्राइबल कास्ट होती है, उसके इन्वेंशन को भी ये क्या करता है? फेस करता है और फाइनली हूणों को ये हरा देता है। बट बाद में यही हूण गुप्ता डायनेस्टी को क्या करते हैं? ओवरथ्रोन करते हैं। तो इस वीडियो में हमने गुप्ता डायनेस्टी के मेन रूलर्स के बारे में पढ़ा है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वह गुप्ता सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होगा। थैंक यू स्टूडेंट।